So welcome to this Genesis batch for LRDI guys. How are you all? Yes, are you all able to hear me? Right? Great. Hi guys. Yeah, please confirm audio and video. Is it okay? Is there any noise in the background or something? Great. Chalo. So yes, this is the beginning of Genesis batch, which is mainly for CAT 2022 and the other entrance exams like you can say ZAT, IFT and all for 2022. So this is a beginners batch. Even IPMAT aspirants can attend this because this batch will also be helpful to them in enhancing their logical capability. Even if you are targeting some other exams like NMAT, SNAP and all, you can keep attending this batch because we are going to start with basics. Guys, I am good. Thank you. How are you all? Sound repeated? Avinash is saying there is some issue with the sound. Guys, is everything okay? Or there is some repetition? Is there any echo? Yeah, great. Fine, no issues. So Avinash, just refresh your app and probably things would be better for you also. Everything is okay. Fine. So guys, we are just starting. Yeah, just a second. Okay. Hi. Yes. Hi everyone. Once again. So yeah, आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं? What should we be doing in the first session? So guys, the first thing that we need to understand is the paper pattern. Okay, what kind of questions are being asked in CAT exam? We will look at past couple of years CAT papers and their topics, rather not exactly the questions and the papers, but what kind of what varieties of questions have come, and then we'll understand how to prepare for LRDI. Because if you ask any of the CAT 2021 aspirant, most of them will say is are finding it difficult to tackle LRDI. Okay, especially those who are good at quants and verbal, but then because LRDI doesn't have a defined syllabus, you can expect anything new in the paper, and that is what actually scare many of the students. So how to get ready? There is a way out, and that is what we'll discuss. And then we'll take up, of course, a puzzle, and we'll take up one easy set to begin with so that we can start thinking. And then from tomorrow, we will once again keep taking different varieties of set. The objective is to lay a strong foundation so that in the coming days, I mean, in next 2 months, if you keep attending the sessions for next 2 months, trust me, you will be in a better position, right? You will not have that fear. Okay, so we are going to discuss all those things. Let me share the PPT first. Hi, Varun. Good evening. Hello. Hi, Akriti. Right. Sure. So, and even if you are preparing 21, guys, definitely this will be helpful. खास करके अगर आपका कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो आप जेनेसिस से अपना शुभ मुहूर्त कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें. ठीक है? So, yeah. Here comes the PPT. Genesis for LRDI first session. Yeah. Okay, so just note down this code chart, and when you go for plus or iconic, do not forget to apply it, guys. And yeah, let's begin with the puzzle. The best way to start this one is starting with a logical puzzle. Okay, so yeah, give a thought in case if you have solved it last year, क्योंकि ये मैंने last year कराया था, तो आप please answer मत करना, let everyone else answer. So there are 4 friends A, B, C, D, and they are returning to their hostel, and it's late evening. It is completely dark around, and they have just one lamp among themselves. On the way, they have come across a cracked bridge, and the bridge can hold maximum 2 people at a time. Okay. Also, no one can walk a step without the lamp. Okay, guys, it is slightly of the olden times, olden era, right? Older era rather.
So these four friends are coming back to their hostel after watching a movie or so. Now don't ask कि पहले के जमाने में मूवी कहाँ थे, ठीक है? तो अभी उनके रास्ते में एक ब्रिज आया है. There is no light source around. It's completely dark and they have just one lantern with them. ऐसे पुराने जमाने में यूज करते थे ना इस टाइप का लैंप, lantern. Right now they need to cross this bridge. Okay, तो वो वुडन प्लैंक के ब्रिज होते थे, रोप के वुडन प्लैंक वाले ब्रिज, तो ऐसा कुछ ब्रिज आया है एंड दे नीड टू क्रॉस दिस ब्रिज. मैक्सिमम ऑफ 2 people कैन वॉक ऑन द ब्रिज. 2 से ज्यादा लोग नहीं चल सकते, राइट? ओके, एंड इट इज नोन दैट इंडिविजुअली ईच ऑफ देम कैन क्रॉस द ब्रिज इन 2, 3, 6 and 9 minutes रिस्पेक्टिवली. मतलब ए अलोन क्रॉसेस द ब्रिज इन 2 minutes. ए एक साइड से दूसरे साइड 2 मिनट में चला जाता है, ठीक है? B takes 3 minutes, C 6 minutes, D 9 minutes. तो ये चारों लोग ब्रिज को कितने टाइम में क्रॉस करेंगे ये आपको बताना है. What is the shortest time? What is the minimum time in which all 4 will be able to cross the bridge? कम से कम कितने समय में, ये आपको बताना है. Now the first sessions, as I always mention, डोंट थिंक लाइक आलिया बट ये मत कहना जैसे एक क्लास में मैं करा रहा था ये पजल, ये ऑप्शन कहां से आया, बी कहां से आया भाई? तुम्हें एबीसीडी हर एक जगह पे बी ऑप्शन दिखता है नूर? नहीं, दिस आर द पीपल. तो किसी ने एक स्टूडेंट ने कहा कि सर देखो क्या होगा, बहुत सिंपल है ये पजल. तो मैंने कहा कैसे? बोलता है सर 3 मिनट में तीनों लोग क्रॉस कर लेंगे. मैंने कहा कैसे? ठीक है, तो उसने कहा कि सर ए है ना वो सी को अपने शोल्डर पे बिठा देगा, बी है वो डी को अपने शोल्डर पे बिठा देगा, क्योंकि आपको ये कहा है कि इसके ऊपर चलना नहीं है, 2 से ज्यादा लोग चल नहीं सकते, तो शोल्डर पे बिठा देते हैं. ठीक है, तो आई होप यू आर नॉट थिंकिंग लाइक दिस गाइस. द ब्रिज कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ 2 people, है ना? ओके फाइन. तो ये तो गलत लॉजिक हो गया. ठीक है, ऐसे लॉजिक मत लगाना. नाउ द अदर थिंग गाइस, टेल मी वन थिंग, व्हेन ए एंड बी गो टुगेदर, व्हेन ए एंड बी गो टुगेदर गाइस, कितना टाइम लगेगा ए और बी को साथ में क्रॉस करने के लिए? हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर ए एंड बी टू क्रॉस द ब्रिज? जल्दी से टाइप करो अपना आंसर चैट बॉक्स में. अक्षत इज सेइंग 5, समवन इज सेइंग 3, या काव्या इज सेइंग 5, कमल इज सेइंग 5. ओके, ये जितने लोगों ने 5 कहा है ना आंसर 5, गाइस आपको थोड़ा लॉजिक पे वर्क करना पड़ेगा, थोड़ी सी सुड़कू वुड़कू ज्यादा सॉल्व करो, फायदा होगा. क्यों? क्योंकि गाइस इट्स वेरी ऑब्वियस, व्हेन 2 people walk together, when 2 people walk together they'll take time equal to the slowest between 2. तो गाइस ए और बी में स्लो कौन है? हु इज द स्लोअर बिटवीन ए एंड बी? अच्छा, बाय द वे आंसर इज नॉट 22, बाय आंसर इज नॉट 22 आंसर होता ना, ये पजल बहुत ही आसान हो गया होता. ये तो बहुत ऑब्वियस है. तो चलो एक चीज क्लियर कर देता हूं मैं, द आंसर इज नॉट 22. अभी क्लियर? फाइन. नाउ लिसन टू मी केयरफुली गाइस, व्हेन 2 people walk together, तो here can I say A is faster than B? Everyone between A and B, A is faster. So you know, but then they need to keep lamp between them. So what A will do is A will reduce his speed. A will reduce the speed and both of them will cross the bridge together in 3 minutes time, जितना B को लग रहा है. Similarly, if B and D go together, then it will take 9 minutes. अगर 2 लोग साथ में जाते हैं तो they'll take time equal to the slowest between 2. अभी क्लियर? Right. Akriti is saying 11 minutes. Akriti, can you please explain? Akriti, ये 11 minutes में कैसे हो जाएगा जरा बताओगे? गौरव is saying 12. Yes, गौरव, can you please tell me? क्योंकि हमें मिनिमम टाइम फाइंड करना है, तो आप में से जिसका आंसर मिनिमम होगा मैं उनको पहले अपॉर्चुनिटी दूंगा. Let them explain. ठीक है? Right. आंचल is saying 26. आंचल तुम्हारा नंबर बहुत बाद में आएगा, पहले मिनिमम वाले. So we have 11. 11 minutes is someone you know with minimum. Shavi is also saying 11. Right. 12. Dheeraj is saying 12. Sir, make 2 groups, A and B and C and D. 3 + 9, 3 + 9, done.
ठीक है, अच्छा एक आंसर बहुत ही कॉमन है ये पजल का वो है 18। क्यों? एलसीएम ले लिया स्टूडेंट्स ने, एलसीएम ले लिया। यू नो एचसीएफ एलसीएम तो लोग मिर्च मसाले की तरह यूज करते हैं, जब भी थोड़ा कम लगा तो उसको छिड़क देते हैं, तो जहां पे नंबर दिखे एलसीएम चिपका दिया। गाइस डोंट डू इट यार, व्हाट इज द पॉइंट इन डूइंग एलसीएम ओवर हियर? मतलब यहाँ पे कॉमन मल्टीपल कैसे आया? हाँ 9 मिनट्स में 3 लोग जाएंगे तो ब्रिज टूट नहीं जाएगा? हाँ आकृति 9 मिनट्स में 3 लोग जाएंगे तो ब्रिज टूट नहीं जाएगा? दोस्तों नहीं गाइस, 12 मिनट्स में नहीं हो सकता, 11 मिनट्स में नहीं हो सकता। हाँ चलो गाइस, काफी लोगों ने कहा था 22 मिनट्स। हाँ देखो नितिन ने लिखा है 2 and 3 साथ में जाएंगे। एवरीवन सी एंड मेनी ऑफ यू हैव गिवन 22 मिनट्स एज द आंसर। लेट्स सी 22 कैसे आएगा पहले तो, फिर मैं बताऊंगा वो क्यों आंसर नहीं है। एक्चुअल आंसर इज लेस देन 22, बट 22 मिनट्स कैसे आएगा? तो फर्स्ट ए एंड बी विल गो टुगेदर, इट विल टेक 3 मिनट्स, 2 3 6 9, these are their individual time, right? A and B will go together, then B will remain on this side and A will have to come back with the lamp. Guys, A will have to come back with the lamp. Do you all agree with this? Everyone, so it will take 2 more minutes, correct? Then A will carry C, A will carry C, correct? तो उसको कितना टाइम लगेगा? 6 minutes. Then again A will come back with the lamp, तो 2 more minutes, and then A will carry D, तो it will take 9 minutes. तो गाइज ये टोटल करो कितना हो गया आपका, ये टोटल करो कितना हो गया? 3 + 2 5 + 6 11 + 2 13 + 9 22 मिनट्स आया। आप में से काफी लोगों ने ऐसे किया था, करेक्ट? यस और नो? आपने ऐसे किया था ना? यस। बट गाइज ये तो बहुत ही ऑब्वियस सोल्यूशन नहीं है कि ए हर किसी को छोड़ के आ जाएगा और फिर लैंप लेके वापस आएगा, देन विल कैरी द नेक्स्ट पर्सन, राइट? बट एक्चुअल आंसर इज लेस देन 22। तो गाइज 22 से कम समय में कैसे होगा, आप जरा बताओगे? हाउ कैन दे डू इट? हाउ कैन दे क्रॉस द ब्रिज इन लेस देन 22 मिनट्स? वंस अगेन इट इज क्लियरली मेंशन, ठीक है? they have just one lamp, no one can walk a step without lamp alongside. मतलब ये मत करना कि ए यहां से जाएगा, बी यहां से आएगा, ए कहेगा अभी तेरे को रोशनी आ रही है ना, चल के आ जा इतना, ऐसे मत करना, क्योंकि लैम्प हैज टू बी देयर, ठीक है ना? हाँ देखो अंशिता तुम वही कहने वाली थी, दे विल स्टैंड ऑपोजिट एंड ऑफ द ब्रिज, राइट? हाँ चलो, what if we take C and D together? Anchal is saying what if we take C and D together? Anchal C और D को ले लिया तो क्या हो जाएगा? C and D को जाने में ही 9 मिनट लग जाएंगे, फिर किसी एक को लैंप लेके वापस आना पड़ेगा, तो ये तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। Do you agree with this? It will be maximum, यहां पे मैक्सिमम नहीं करना है, नहीं तो मैक्सिमम करना है गाइस, मैक्सिमम करना है तो क्या होगा? ए जाएगा, फिर वो आधे से ही वापस आ जाएगा, वो कहेगा मैं नहीं जाऊंगा, फिर सी जाएगा, वो आधे से वापस आ जाएगा, वो कहेगा मैं भी नहीं जाऊंगा तो वो लोग वहां पे ही रहेंगे तो मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है ना, मैक्सिमम करना प्रॉब्लम नहीं है। राहुल को सोल्यूशन मिल गया। हाँ वरुण जहां पे बत्ती नहीं लगी हुई है वहां पे हैप्पीडेंट कहां पे मिलेगा भाई? ठीक है, हैप्पीडेंट कहां पे मिलेगा? अरे वाह, राहुल को सोल्यूशन मिला है कुछ। सो राहुल व्हाट इज द सोल्यूशन? सर फर्स्ट A and B will go, Bhavna is saying A and B will go, A will come back, then C and D will go, B will come back. Yes, absolutely correct guys. So what she has mentioned is correct, the answer is 20 minutes. Everyone now let's see, नहीं हाफ वे तक नहीं जा सकते, हाफ वे से कोई फायदा नहीं होगा गाइस। सबसे पहले A और B जाएंगे, 3 मिनट्स लगेगा, देन A will come back 2 more minutes. नाउ सिचुएशन क्या है? B यहां पे है और A C D यहां पे। Now A will hand over the lamp to C and D, and now C and D will go together. It will take 9 minutes. क्योंकि ये C को 6 मिनट्स लग रहा है, D को 9 मिनट्स लग रहा है, तो उनको अलग अलग भेजने की जगह पे साथ में भेज दो, send them together. That is the strategy that we are using. Are you getting this point, everyone? So yes,
This will take 9 minutes. Now B was already on this side, so B will come back with the lamp 3 more minutes, and then वापस A और B जाएंगे. So it will take 3 more minutes. Total करो ये कितना आ जाएगा? 20 minutes आ जाएगा. Please add these values, guys. And this is what you need to crack LRDI of CAT. There's a reason why I took this puzzle. सब लोगों ने 22 बताया कि नहीं? तो सब लोग यहां तक सोचते हैं. जो लोग यहां तक सोचेंगे वो यहां वाले कॉलेज में ही जाएंगे. आपको थोड़ा बाहर सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा. गाइस, नथिंग इज गोइंग टू बी ऑब्वियस या ऑब्वियो एपेरेंट नहीं आने वाला है. You will have to figure out things. You will have to think out of the box and you'll have to find the solution. ठीक है? So if you have decided that you want to go for CAT 2022, but अगर आप ऐसे कहते हो नहीं सर आउट ऑफ बॉक्स तो नहीं सोचा जाएगा, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि CAT 2022 देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, right? But otherwise, if you enjoy this, you're going to enjoy every single situation because you will appreciate यार किसने सोचा ये प्रॉब्लम, किसने बनाया ये पजल. Are you getting this point? चेतना बिना लैंप के ये कैसे आएगा वापस? अरे वापस ये लैंप लेके आया ना, ये came back with the lamp. यहां पे लैंप इन दोनों के पास में, जो भी चल रहा है उसके पास में लैंप है ही है. देखो, ठीक है, राइट. हाँ चलो, अभी काफी लोगों को चमक गया. Fine guys, so let's go ahead and yeah, let me quickly tell you something about myself in case if you are attending my session for the first time. How many of you have come across my session for the first time? Type me in the chat box quickly. Yeah, जल्दी से me लिखो chat box में अगर आप first time attend कर रहे हो आज मेरा session. विशाल is new, शुभम, प्राची, शीतल. Okay, जपनी तुमने तो किया हुआ है भाई, पहले सेशन मेरे कर ही रहे हो, मैंने तुम्हारा दिखा हुआ है. Unless you have a namesake, right? Haripriya, Mukesh, Sujata, Priyanshu. Okay, so there are so many new students. Fine guys, so the first thing that you should do is please be part of this group. नहीं, I'm saying at all you are, ये चेहरा आपके लिए नया है, ठीक है, मेरी आवाज आपके लिए नहीं है, ऐसा टाइप का. अगर आपने मेरा एक वीडियो भी देखा है, आपको पता है कि क्या ग्रुप है, क्या नाम है, तो कोई सवाल नहीं है. यू नो मी, ठीक है. बट इन केस इफ यू हैव जस्ट कोई नोटिफिकेशन आया हो. हाँ, गौरव सिंह, आई एम योर डेली कस्टमर. डेली मैं हर जगह दिख जाता हूँ. फॉलोइंग सर, देखा है क्वांट में. ओके फाइन, ग्रेट गाइस. सो जल्दी से आप में से जिन लोगों को मेरा शेड्यूल नहीं पता है, सो गाइस शेड्यूल नोट करो, ठीक है. एक चीज जो मैं मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स को हमेशा रेकमेंड करता हूं दोस्तों, जिसको भी फॉलो करो, आप चाहे मुझे फॉलो कर रहे हो, 40 और फैकल्टी है, आप एक फैकल्टी को फॉलो करो लेकिन उनको रेगुलरली फॉलो करो, ठीक है. यहां वहां ताक झाक मत करो. विंडो शॉपिंग नहीं करनी है, राइट? विंडो शॉपिंग मत करो गाइस. एक सेशन को अटेंड करो. देयर आर ऑल द फैकल्टीज आर वेल क्वालिफाइड, दे हैव समथिंग टू ऑफर यू. तो मैंने देखा है काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आज आए कल नहीं आए, फिर परसों यहां वहां भटकते एकदम से आ गए. वो उससे कोई प्रिपरेशन नहीं होगा, राइट? इफ यू आर लुकिंग फॉर गुड प्रिपरेशन, 2 months कंटिन्यूअसली, हर रोज, मतलब जो भी डेज है आपका, ये जेनेसिस बैच है. वंस अगेन मंडे टू सैटरडे में, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे ऐसे कुछ रहेगा, या थर्सडे सैटरडे ऐसे कुछ रहेगा, ठीक है. सो देयर मे बी स्लाइट चेंज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे ऐसे भी हो सकता है, या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे थोड़ा बहुत हो सकता है. सो आई एम जस्ट फिगरिंग आउट द डेज. बट यस, कल सेशन है, ये याद रख लेना, कल सेशन है, ये जस्ट शुरू हो रहा है, राइट? ओके, सो गाइस नाउ लेट्स टॉक अबाउट LRDI सेक्शन फॉर CAT, ZET एंड IFT. ठीक है, ये 3 एग्जाम में काफी सिमिलरिटी है. एंड इफ यू लुक एट द अदर एग्जाम्स लाइक SNAP, CMAT, NMAT, TISNET, अगर आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है, फिर मैट ले लो, एटमा ले लो, तो और भी कुछ अगर आपके एग्जाम IB SAT ये वो अगर आप ले लो, ये सब एग्जाम में LRDI ऑलमोस्ट सेम आता है. एंड इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम CAT LRDI. अगर आपने CAT वाला LRDI किया तो ये हो जाएगा, लेकिन अगर आपने सिर्फ ये किया तो CAT वाला नहीं होने वाला है. Are getting this point? So CAT LRDI is like
umbrella. भले ही variety of questions are also different, but then you required to be very well logically prepared. ठीक है, आईपी मैट के लिए ये वाला आता है, आईपी मैट रोहतक, डीयू चैट, ये सब में ये वाला एलआरडीआई आता है. ठीक है, तो जेनेसिस के अंदर चूंकि हम बेसिक कर रहे हैं तो ये वाला एलआरडीआई सबके लिए यूजफुल होगा. राइट, ओके, चलो. सो गाइज मैं कैट 2020 का आपको एक बार दिखा देता हूं जल्दी से कि क्या क्वेश्चंस थे. तो डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, एज सच कोई बाइफर्केशन नहीं होता है. ऑल दिस बाइफर्केशंस आर बीइंग डन बाय अस द फैकल्टीज, कि इसको हम डीआई कह देंगे, इसको हम एलआर कह देंगे. कोई इसको अगर एलआर भी कहता है तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो गाइज हम लोग इन जनरल उसको एलआरडीआई ही बोलते हैं. तो उसमें डीआई टाइप के कहे तो ड्राइवर्स एंड रेटिंग का क्वेश्चन आया था 2020 में. देन स्टूडेंट्स एंड एग्जाम का क्वेश्चन आया था. सेट ऑन पेशेंस, पेशेंस नहीं है, पेशेंस है ये. ठीक है, फिर लॉजिकल रीजनिंग में इंस्टीट्यूट वेंडर्स का आया था. इट वाज मोर लाइक एन अरेंजमेंट. एंड सेट ऑन म्यूजिशियंस आया था, म्यूजिशियंस को अरेंज करना था. सो इट वाज वंस अगेन मोर ऑफ अरेंजमेंट. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो. अब ये फर्स्ट टाइम कैट की हिस्ट्री में 6 क्वेश्चन का सेट आया. 6 क्वेश्चंस एक सेट में, आज तक कभी नहीं आया था 2020 तक. ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था. एंड काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये सेट कर लिया था. मतलब 6 क्वेश्चन उनके सही हो गए, प्लस 2 और कर लिए तो उनके 8 क्वेश्चन हो गए. 95 प्लस परसेंटाइल उनका चला गया था, जस्ट विथ 8 करेक्ट क्वेश्चन, नो इनकरेक्ट. ठीक है, so it's not very difficult to score well in LRDI. 2019 की बात करते हैं. Absolutely, yeah, Amit, it can be done. 2019 में देखो, लॉजिकल रीजनिंग में अरेंजमेंट, देन यू कैन से डांसर्स एंड कंपोजिशन इज नथिंग बट अरेंजमेंट. ठीक है, देन राइट, ये 2 अरेंजमेंट के सेट्स है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेटेज ऑफ दिस अरेंजमेंट हैज गॉन अप. और बाकी सारे एग्जाम्स एनमेट स्टैम्प में भी थोड़ा बहुत अरेंजमेंट आता है, लेकिन कैट का अरेंजमेंट थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, थोड़े ज्यादा वेरिएबल्स रहते हैं उसमें. ठीक है, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन में बार चार्ट, तो ये एक आया था 2019 में. एंड देन देयर वाज अ स्पाइडर चार्ट, तो ये थोड़े कैलकुलेशन बेस्ड हो गए. और बाकी जो सारे हैं वो पजल्स टाइप हो गए. ये कंप्लीटली अलग वैरायटी है. स्ट्रीट इंटरसेक्शन ले लो, कोडिंग ले लो, प्राइजेस टू बी पुट इन 100 बॉक्सेस ले लो, तो ये सारे मिसलेनियस वैरायटी हो गए. GNT इन सबसे नहीं आया. मतलब क्या कह रहे हो सर? 2020 में सिटिंग अरेंजमेंट GNT मतलब क्या? ठीक है, गेम्स एंड टूर्नामेंट, गेम्स एंड टूर्नामेंट. अच्छा, ओके. 20 में गेम्स एंड टूर्नामेंट था ना? कौन सा था? हाँ, नहीं, गेम्स एंड टूर्नामेंट इसमें नहीं था क्योंकि पेपर ही बहुत छोटा था ना. तो इसमें ये थे, इसमें कोई भी गेम्स एंड टूर्नामेंट नहीं था. ठीक है, सेट्स ऑन म्यूजिशियन, ये जो है ना, दिस इज मोर लाइक एन अरेंजमेंट. दिस इज अरेंजमेंट. ओके, फाइन. हाय, गुड इवनिंग. Good evening, guys. Chalo. So how to prepare for this section, guys? How to prepare? That's a very important thing you need to understand. Practice easy but logical and calculative sets. Guys, आपको पहले 2-3 months आपको easy but logical and calculative sets practice करनी चाहिए. जैसे हमने अभी river and bridge puzzle लिया. Was it difficult to understand? No. In fact, was it difficult to solve? No. स्टार्ट विद दोस काइंड ऑफ पजल. देखो, अगर मैं आपको ऐसा वाला सेट दे देता हूं ना, कैट का एक सेट दिखाता हूं. अगर मैंने ये सेट दे दिया 2018 का, ये कैट सेट है गाइस, कितना हॉरिबल लग रहा है. पहले ही आपका दिल डरा हुआ है. ठीक है, उसको ऑल इज वेल कहने की जगह पे आप ये कह रहे हो कि यू आर गोइंग टू बी किल्ड, राइट? तो ये हालत हो जाती है अगर आप सीधा ऐसे सेट पे जंप करते हो तो. सो दिस इज व्हाट वी आर नॉट गोइंग टू डू, राइट? हाँ, नहीं, हमने किया हुआ है 2021 में, हमने किया था. 2018 का सेट है तो हमने किया ही होगा. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो टू 2022 स्टूडेंट्स के व्हाट यू शुड नॉट बी डूइंग एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रिपरेशन. तो ऐसे सेट्स पे जंप मत करो, राइट? स्टार्ट विद बेसिक्स. अब बेसिक्स क्या है? तो बहुत कम बुक में आपको ऐसे बेसिक्स मिलेंगे. फॉर दैट यू विल हैव टू अटेंड दिस बैचेस, राइट? ओके,
then read the data carefully. Guys, this is another habit that you will have to develop. You know, I have seen students जब उनको 5 लाइन की इंफॉर्मेशन देते हैं ना, तो वो एक लाइन खा जाते हैं, एक लाइन में कुछ डेटा गड़बड़ी कर देते. तो try to make sure that you are retaining correct data. This is the habit that you should develop in next 2 to 3 months. Then try to capture information in the first reading itself. मतलब ऐसा भी नहीं कि बार बार रीड करके आपने वो इंफॉर्मेशन गैदर किया. देन डेवलप एबिलिटी टू जज विद प्रैक्टिस. जजमेंट डेवलप करो. जजमेंट मतलब कैसा? जजमेंट मतलब टफनेस, कि ये कितना टफ होगा, राइट? उसका जजमेंट डेवलप करो, राइट? कितना कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे. Then attend Genesis for LRDI regularly for 2 months. This would definitely help. And you can also join my Plus batch, which is starting from 25th September for 2022. LRDI for 2022. So guys, आप Genesis भी अटेंड कर रहे हो, प्लस भी अटेंड कर रहे हो, मुझे नहीं लग रहा है आपको कोई भी बुक से कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी फिर. ठीक है, आपकी क्लास में ही इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट? ओके, चलो. सो गाइस, बुक्स की अब बात करते हो. काफी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर बुक्स कौन सा रिफर करें. सो एलआरडीआई के लिए आप अरुण शर्मा या फिर अरिहंत का पास्ट ईयर पेपर्स का एक बुक आता है, फेस टू फेस विद कैट, वो भी ले सकते हो. एनी इंस्टीट्यूट मटेरियल विल बी गुड गाइस, या फिर जो फ्री पीडीएफ्स वगैरह अवेलेबल होते हैं आप उससे भी कर सकते हो. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है. VARC भी शुरू हो रहा है गाइस. VARC इज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे. ठीक है. सो जेनेसिस बैच, आपको पता है कि मैं जो भी बैचेस शुरू करता हूं दे आर नॉर्मली कंप्लीट बैच. उसमें क्वांट, एलआरडीआई एंड वर्बल तीनों होता है. जैसे हमने लक्ष्य बैच किया था, सब किया, राइट? हाँ. दैट्स अ सरप्राइज. टाइमिंग क्या हो गया उसके? बहुत ही सरप्राइज टाइम है उसके. ठीक है, इट विल बी अ सरप्राइज टाइम. ठीक है. तो गाइज हमें ऐसे सेट्स अभी नहीं करने हैं. विल स्टार्ट डूइंग सच सेट्स फ्रॉम जैन से हम शुरू करेंगे, राइट? ओके. तो ये कैट का सेट है. देखो इसमें इंफॉर्मेशन ही कितना है, इतना डेटा है, फिर ये चार्ट है. उतना कम पड़ रहा था तो और ये 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं. देयर आर 8 पॉइंट्स, बट लेट मी टेल यू दिस इज एन इजी सेट. टाइम कंज्यूमिंग था लेकिन इट्स एन इजी सेट एक्चुअली. कैट में तो इसको मॉडरेट टू टफ कहा गया था, बट वंस यू अंडरस्टैंड यू विल से कि इट्स इजी. बट उसके लिए हमें 2 महीना वेट करना पड़ेगा टू टैकल सच कैट सेट्स, ताकि आप खुद से सॉल्व कर पाओ, राइट? यूट्यूब पे VRC यूट्यूब पे होगा दोस्तों. इट विल बी ऑन यूट्यूब. आर वी क्लियर? फाइन. So guys, before we go ahead with our today's set, I just want to quickly tell you that plus batches के अंदर आपको क्या-क्या मिलता है. So you get live classes, you get more guidance, doubt solving and all. Even in Iconic, this is another variant of Unacademy Iconic subscription. तो उसके अंदर आपको जो मिलता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों. IIM के बंदे की मेंटरिंग मिलती है. I just had a discussion with the Iconic team. We have a set of mentors right now who all are from A, B, C, I, L and K and 3G. हमारे सारे mentors अभी ये IIM से है, right? And they guide you for the preparation. You get doubt solving, individual one-on-one doubt solving and all, right? No, there will be different educator. There will be different educator. Okay, you also get study notes and all, and so prices goes up before that. Take the plus. Do not forget to apply the code, guys. Chalo. So let's start with the first caselet. Everyone, एक सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करते हैं, but of course it will be logical in nature. To go through the data. Go through the data. नहीं, रितु मैम नहीं ले रहे. Guys, have you all read the data? Just a moment, don't type your answer over here. I'll create the poll.
Yes, sure. So let's create the poll. What can be the maximum score of Bunty? Huh, just a second, guys. Let's see. Select your answer in the poll. अनअटेम्प्टेड के लिए -1 है. देखो 1 मार्क इज डिडक्टेड फॉर ईच क्वेश्चन लेफ्ट अनआंसर्ड. अनअटेम्प्टेड के लिए पीयूष -1 है. देखो, आर यू क्लियर? यस, श्योर. So guys, let's quickly understand how to solve. What can be the maximum net score of Bunty? Maximum net score. तो बंटी के अटेम्प्टेड 25 है, राइट? अटेम्प्टेड बंटी के 25 है. Okay. And guys, can I take all the correct, right? I can take all correct, na? Yeah. So why are you saying 60? राइट, ओके फाइन. सो टोटल कितने क्वेश्चन है उसके? अनअटेम्प्टेड कितने हो जाएंगे? 15. अनअटेम्प्टेड 15 हो जाएंगे क्योंकि टोटल क्वेश्चन यहां पे लिखे हैं, राइट? 40. करेक्ट. द टोटल क्वेश्चंस आर 40. सो इट विल बी 25 into 3 minus 15 into 1 हो जाएगा, राइट? सो दिस विल कम आउट टू बी 60. हाँ, ओके. unanswered 15. Are we clear? Yes, sure, fine. 40 total question hai, it's mentioned over here, huh? Right. Let's try for this. Yep. So many of you got a different answers. So let's do it, guys. If Dhanush had a net score of 50, guys, यहाँ पे देखो हम कैसे करेंगे? You can say correct, incorrect, unattempted and total score. ठीक है? अब यहाँ पे धनुष के अनअटेम्प्टेड 10 है, तो ये तो हमें पता है कि ये -10 तो स्कोर उसका होने ही वाला है, राइट? अब नो, देयर इज नो लैग. आकृति, टोटल स्कोर हमें 50 लाना है. टोटल स्कोर हमें 50 लाना है. एवरीवन, लैग, जस्ट अ सेकंड. Just a second. Let me just refresh.
Oops. Is it better, everyone? No, still lag. Just a second. Huh? Let me do something. हाँ गाइस, अभी भी लैग है या बराबर सुनाई दे रहा है? ओह, now clear? Now clear? Yeah, thanks everyone. Sure, let's continue. So when will the quant batch of Genesis begin? अरे बिन्नी, क्वांट बैच जेनेसिस का अभी जस्ट शुरू हुआ है, ठीक है? तो आप जल्दी से ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैंने लिंक भी पिन किया हुआ है, ठीक है? राइट, ओके. सो गाइस, लेट्स डू इट दिस वे. करेक्ट, इनकरेक्ट, अनअटेम्प्टेड, स्कोर, फाइनल स्कोर. तो स्कोर हमें इसका दिया हुआ है 50, ठीक है? ध्यान से सुनना. अभी 50 का स्कोर है, 10 अनअटेम्प्टेड है. ये क्या हो रहा है इसको? हाँ, 10 अनअटेम्प्टेड है दोस्तों, राइट? मतलब -10 ये हो गया, तो कहना है करेक्ट माइनस इनकरेक्ट. करेक्ट माइनस इनकरेक्ट शुड बी आपका 60, तभी 60 माइनस 10 विल बी 50. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, राइट? ओके, तो नाउ लेट्स सी इन हाउ मेनी वेज कैन आई डू इट. एंड टोटल मेरे पास कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चंस. 30 क्वेश्चंस है, राइट? सो per question there is 3 marks. Per question there is 3 marks. नहीं, unattempted 10 क्वेश्चन चले गए, so let's not count it. We are just talking about correct and incorrect now. Everyone please pay attention, otherwise you'll miss out that. मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ correct, incorrect. अभी ये 30 क्वेश्चंस है, क्योंकि unattempted ऑलरेडी 10 क्वेश्चन हो गए, टोटल 40 क्वेश्चंस थे. ये 10 क्वेश्चन है और पर क्वेश्चन 1 मार्क नेगेटिव होगा, इसलिए मैंने 10 मार्क्स लिखा था, करेक्ट? तो दोस्तों कैन आई से उसको करेक्ट माइनस इनकरेक्ट, यहां पे नेट स्कोर 60 का आना चाहिए. नेट स्कोर शुड बी 60. 60 माइनस 10 ही विल गेट नेट स्कोर ऑफ 50, करेक्ट? अब ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पे 30 करेक्ट ले लेता हूं, 0 इनकरेक्ट लेता हूं, तो स्कोर कितना हो जाएगा? 33 is 90, ठीक है? 30 into 3 90 हो जाएगा. हमें तो 60 चाहिए, तो नहीं चलेगा. If I take 25 and 5, if I take 25 and 5, तो ये कितना आ जाएगा? देखो, 25 into 3 75, 5 into -2 ये 65 आ जाएगा. I don't want this. तो 3 + 2 5 होगा. मुझे 5 मार्क्स ही कम करने, तो मैं क्या करूंगा? 24 and 6 ट्राई करता हूं. Now 24 3s are 72 and 6 into -2 will be -12. 72 -12 कितना आ जाएगा? 60. मतलब उसके करेक्ट 24 हो गए, इनकरेक्ट 6 हो गए, अनअटेम्प्टेड 10. तो उसके इसमें उसका नेट स्कोर 50 ही आएगा. उसका नेट स्कोर 50 ही आएगा. क्या ये चमका सबको दोस्तों? यस, मैंने क्या किया? नेट स्कोर 50 लाना है, उसमें 10 इनकरेक्ट 10 अनअटेम्प्टेड का आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया था. मतलब करेक्ट एंड इनकरेक्ट का नेट टोटल आपका 60 आना चाहिए. तो वो 60 कैसे आएगा? थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर आपको करने की जरूरत थी उसमें, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स गाइज. अगर ऐसा आप एक क्वेश्चन एक केसलेट करते हो हर रोज, राइट?
you can actually build your concepts. बट सिस्टमैटिक वे में करना, ऐसा नहीं कि रैंडमली आप कुछ भी खिचड़ी मत बनाना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे. इट्स वेरी इजी टू गेट कंफ्यूज्ड इन LRDI. सो आई एम गोइंग टू टेक यू इन अ सिस्टमैटिक मैनर. आप जेनेसिस बैच अटेंड करो, एंड इन द पास्ट आल्सो स्टूडेंट्स हैव बेनिफिटेड, तो आपको भी फायदा होगा, राइट? आई एम श्योर अबाउट दैट. चलो लेट्स ट्राई फॉर दिस. नाउ गाइस आई विल गिव यू मोर टाइम, तो आप थोड़ा सा सोच के करना. Bunny had the highest net score. Then at most, how many mistakes did he have? How many mistakes he must have committed या something like that. मतलब उसके incorrect कितने होंगे वो हमें पूछा है. और ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों, सोच समझ के करना, ठीक है? ये हमें हाईएस्ट लाना है, ठीक है ना? Yes, Apurva, tell me. बोलो. क्या क्वेरी है? गाइस फ्री कब है? अच्छा, आप पिंग मी ऑन टेलीग्राम ना. आज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आप मुझे पिंग करो. अपूर्वा, जस्ट पिंग मी ऑन टेलीग्राम, ठीक है? Guys, if Bunty had the highest net score, then at most how many mistakes did he have? देखो, इसके करेक्ट तो 18 ही है, राइट? बट धनुष है, उसके अनअटेम्प्टेड 10 है, राइट? तो धनुष के अटेम्प्टेड हम 30 ले लेते हैं, ठीक है? तो उसका स्कोर कितना हो सकता है यहाँ पे? उसका स्कोर कितना हो सकता है यहाँ पे? मैं 30 करेक्ट ले सकता हूं उसके, सॉरी अटेम्प्टेड 40 ले, अटेम्प्टेड 30 ले लेते हैं और करेक्ट 30 ले लेते हैं, तो उसका स्कोर कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, राइट? दिस स्कोर विल बी 80 ना. फिर आशा का, तो बंटी का हाईएस्ट तो हो ही नहीं सकता ना. हाँ, बंटी का हमने कितना देखा था? हाईएस्ट स्कोर कितना आ सकता है बंटी का? हमने आगे के क्वेश्चन में दिखा था ना, अगर उसके सारे करेक्ट ले भी लेते हैं तो भी उसके 15 तो अनअटेम्प्टेड रहेंगे ही रहेंगे, है ना? ओके, नहीं तो ये गलत हो जाएगा. दिस विल बिकम रॉन्ग. गाइस एक सेकंड, यहां पे कुछ एरर लग रहा है. यहां पे बंटी नहीं होना चाहिए, धनुष होना चाहिए. हाँ, आशा 66 है. नहीं, लोएस्ट में तो वो काफी सारी मिस्टेक्स कर सकता है ना. बंटी, यहां पे धनुष होना चाहिए गाइस, धनुष होना चाहिए.
नाउ ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन गाइस, अगर यहां पे धनुष ले लेते, इफ धनुष एट द हाईएस्ट नेट स्कोर, देन एट मोस्ट हाउ मेनी मिस्टेक्स डिड ही हैव कमिटेड, राइट? लेट्स डू इट दिस वे, अगर धनुष का हमें हाईएस्ट नेट स्कोर लाना है, करेक्ट, तो कैसे ला सकते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। तो यहां पे उसके 10 अनअटेम्प्टेड है, तो उसके 30 अटेम्प्टेड ले लो, सारे 30 करेक्ट थे, तो उसका स्कोर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है? अभी उसका स्कोर 80 है। नाउ कैन आई से फॉर एवरी इनकरेक्ट, देखो अभी आपने क्या किया, करेक्ट 30, इनकरेक्ट 0, अनअटेम्प्टेड तो फिक्स रहेंगे, अनअटेम्प्टेड हम 10 टच नहीं कर सकते, तो उसका स्कोर कितना आ रहा है, ध्यान से सुनो ये बात, 80 आ रहा है। अगर मैं यहां पे 29 एंड 1 कर दूंगा, तो कैन आई से ये स्कोर मेरा 75 हो जाएगा। यू एग्री विद दिस? अगर मैंने यहां पे 29 एंड 1 कर दिया तो मेरा स्कोर 75 हो जाएगा, करेक्ट दोस्तों? 29 3 जा 87 माइनस 2 माइनस 10 75 हो जाएगा, मतलब 5 से कम होगा। सुनो, अरे दिशु क्या कर रही हो, अगर यहां पे 28 एंड 2 किया तो ये कितना आ जाएगा, 70 आएगा कि नहीं दोस्तों? चेक करो जल्दी से, क्यों, इंटू 3 इंटू -2, और ये -10 तो है ही है, ये -10 तो हर एक से सबट्रैक्ट होगा, तो 70 होगा। सो फॉर एवरी इनकरेक्ट योर स्कोर इज गोइंग टू ड्रॉप बाय हाउ मच, 5, करेक्ट? तो कैन आई से अगर उसकी इनकरेक्ट 0 लेते हो तो स्कोर उसका 80 आया, उसका करेक्ट 1 लिया तो स्कोर 75 आया, 2 लिया तो 70 आया। अगर मैंने यहां पे 27 करेक्ट एंड इनकरेक्ट 3 कर दिया तो उसका स्कोर कितना हो जाएगा, 65, which will become lesser than this one. So आप धनुष अगर यहां पे करते हो तो यहां पे आंसर 2 कर दोगे। क्या ये अग्री करते हो आप? मतलब उसके मैक्सिमम 2 गलत हो सकते हैं। यस? क्या ये सबको समझ में आया दोस्तों? जल्दी से यस और नो टाइप कर दो। जिसको नहीं आया है उसको एक बार वापस सुनना पड़ेगा, ठीक है? Right? Okay. So it was pretty logical in nature, right? And guys, one last question: what could be the correct range of scores of एकता? एकता के स्कोर्स क्या हो सकते हैं? आपको रेंज सेलेक्ट करनी है यहाँ पे, तो जल्दी से मुझे बताओ एकता का स्कोर क्या हो सकता है, रेंज। गिव अ थॉट एंड टेल मी। यस गाइस, चलो देखते हैं ट्रिकी क्वेश्चन, द आंसर शुड बी दिस वन, लेट्स सी। देखो सपोज एकता ने सारे 40 अटेम्प्ट किए, तो वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, उसके करेक्ट तो उसके 80 नहीं रहने वाले, शी अटेम्प्टेड ऑल 40 एंड बाकी के 22 इनकरेक्ट हो गए, तो इंटू 3 इंटू -2 करो, कितना हो जाएगा, 54 माइनस 44 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो मिनिमम स्कोर इज 10, ठीक है? व्हाट कैन बी द बेस्ट थिंग गाइस, तो उसने यहां पे सपोज सिर्फ 18 ही अटेम्प्ट किए, 18 करेक्ट, बाकी के 22 अनअटेम्प्टेड रखे, तो उस केस में क्या हो जाएगा उसका 54, ये इंटू 3 किया तो 54 हो जाएगा, इंटू -1 करो तो कितना आ जाएगा, -22, 54 -22 कितना आ जाएगा, 32, सो उसका मैक्सिमम स्कोर 32 हो सकता है।
उसका मिनिमम स्कोर 10 हो सकता है फॉर द गिवन 18 फिक्स करेक्ट, मिनिमम स्कोर 10 आ सकता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कुड हैव डन दिस केसलेट गाइस। सो गाइस दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू लर्न इन जेनेसिस बैच। मैंने आज के सेशन में कुछ भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कराया है, बट यस डेफिनेटली वी हैव वॉक्ड वन स्टेप टुवर्ड्स आवर कैट प्रिपरेशन। तो ऐसे हर रोज एक कदम चलोगे, 60 कदम चलने हैं, ऐसे याद रख लो पहले तो, फिर बाकी के बाद में आप चलोगे, ठीक है। सो या keep learning with me guys, and join me at 6 p.m. for the Genesis batch. And if you are IPMAT aspirant, आज से मेरा IPMAT का भी नया बैच शुरू हो रहा है 5 o'clock, so join me for that. And yeah, go for plus and you will access everything from here. ये सेशन का आपको PDF यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन इसमें तो नहीं होगा, YouTube पे डिस्क्रिप्शन में मैं PDF डालता हूँ, तो वो अभी अपडेट होगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर गाइस। अगर आपको कोई भी प्लस रिलेटेड क्वेरी है तो यू कैन पिंग मी ओवर हियर ronak_live, एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन। दिस इज माय टेलीग्राम आईडी, तो आप टेलीग्राम पे मुझे यहाँ पे पिंग कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू वांट टू नो अबाउट प्लस। गाइस आप में से काफी सारे लोग पूरा फ्री में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप फ्री में सेशन अटेंड करो, लेकिन एटलीस्ट डोंट डिस्टर्ब मी, बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट आई कांट एड्रेस एवरीवन्स क्वेरी, राइट। तो आप प्लीज मुझे पर्सनली पिंग मत करना। इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर प्लस, यू कैन कीप अटेंडिंग सेशंस, यू कैन पोस्ट इट ऑन द ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप लिंक भी मैंने आपको दिया हुआ है, डीपीपी टेलीग्राम पे भी मिलेंगे, यहाँ पे भी मिलेंगे आपको, पर ये एलआरडीआई जेनेसिस एलआरडीआई का डीपीपी नहीं है, उसके लिए बुक परचेज करना पड़ेगा सुरांगी, ठीक है। क्वांट के अंदर, क्योंकि क्वांट के टॉपिक्स ऐसे हैं ना, डीपीपी इतने आसानी से मिलते नहीं है वो पर्टिकुलर टॉपिक के। एलआरडीआई इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग फ्यू पजल्स, तो आप कोई भी बुक ले लो, निशित सिन्हा वगैरह, उससे आप कर सकते हो, राइट। Fine guys, chalo, that's it, bye bye, take care.